Praise the Lord. Message by Pastor Manohar. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। We greet you all once again in the blessed name of our two texts, one from the Old Testament, the other from the New Testament. हम दो आयत पढ़ेंगे, एक तो पुराने नियम से, दूसरा नया नियम से। And Deuteronomy chapter 32, 11 and 12. व्यवस्थावरण 32 का 11 और 12 वचन, And Matthew's Gospel 24th chapter 28. और मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 28वां वचन। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराये देवता ना था। As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings, so the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. जहाँ लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। In these two verses we find two pictures, but it contrasts with one another. और यहाँ पर दो वचन को हम पढ़ते हैं जो एक के विरोध में है दूसरा वचन। One, you find an eagle builds up a nest, raise up chickens, chicks, the little ones, and then allow them to make comfortable stay there, and then stir them up, and later carry them over the wings. और व्यवस्थावरण में जो हम पढ़ते हैं वहां पर हम ऐसे देखते हैं क्योंकि आप अपने घोंसला बनाकर उसमें अपने बच्चों को रखता है और बाद में उस घोंसला को हिलाकर उस बच्चों को उड़ाने के लिए सिखाने के लिए उन्हें नीचे गिराकर फिर अपने पंखों से ऊपर उठा लेता है। The other is, eagles generally go after the dead bodies. अगली बात जो मत्ती में पढ़ते हैं वो ये है कि जो उकाब है वो लाश के पीछे जाती है। But Jesus used that illustration for a greater purpose. लेकिन यीशु मसीह उसको एक विशेष उद्देश्य से वहां बुलाए। Generally, eagles go after the dead body. खासतौर से हम जानते हैं कि उकाब जो है वो लाश के पीछे जाते हैं। But here he refers about his rapture. लेकिन यहाँ पर वो उस यीशु मसीह के दोबारा आगमन में उठा ले जाने के बारे में कहता है। So that shows that God has got a definite plan in both the situations. यानी इस दोनों हालात में परमेश्वर का एक खास मकसद है, ऐसे हम देखते हैं। We may wonder why certain things are happening in our life. हम हैरान होते होंगे क्यों हमारे जीवन में ऐसे कुछ बातें बीतती है। Because here we find a beautiful example how an eagle builds up a nest, make it very cozy and comfortable, and allow the little ones to stay for a while. हम यहाँ पर देखते हैं उकाब कैसे अपने घोंसला में अपने बच्चों को बड़े आराम से रहने देता है और उसको फिर बाद में हिला देता है। And then afterwards stir up the nest and allow them to fly over and then carry them over their wings. बाद में उस घोंसला को हिलाकर उस बच्चों को नीचे गिराने के बाद फिर अपने पंखों में ही उसे उन बच्चों को ऊपर उठा भी लेता है। In the one way, when you look at it, it looks as if it's a picture only regarding an eagle like that. एक उकाब का एक दृश्य यहाँ पर हम देखते हैं, But it's not so. लेकिन केवल वो ऐसा नहीं है। There, God himself compares himself as an eagle like that. परमेश्वर वहां पर अपने को एक उकाब के साथ तुलना कर रहा है। That means God's particular care regarding everyone's life. परमेश्वर का हर एक के जीवन के बारे में उसका जो परवाह करने का अनुभव है He उसके is बारे the में one देखते who हैं। gives you life. He is the one who guides you, feeds you, builds you up, and certain time he stirs up and almost disturbs the whole plan. वो अपने जीवन के बारे में तो परवाह करता है जरूर, हमारा वो ख्याल करता है, लेकिन कभी कभी वो हमें वो हिला भी देता है। And finally, he carries you on his wings like that. अंत में वो अपने पंखों के ऊपर वो फिर हमें उठा लेता है। On the other hand, I told you, eagles go after the dead body, but here, that body is Jesus Christ. और दूसरी तरफ जो उकाब के बारे में बताया गया जो लाश के पीछे जाती है, वहां पर हम देखते हैं वो यीशु मसीह के बारे में बोला गया है। And eagles are compared to the saints of God. और ये उकाब संतों के साथ तुलना किया जा रहा है। Generally we look at it, it's a kind of a negative picture, like
eagles go after the dead body. आमतौर से देखा जाए तो एक नकारात्मक अनुभव है, यानी उकाब लाश के पीछे जाती है। But when you look at the positive way, you look at that greater purpose that the Lord Jesus Christ will come and saints will go and meet him. लेकिन सकारात्मक तौर पर यानी उसे अच्छी तरह से सोचा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह के आगमन में वो संत लोग उठा लिए जाने के तजुर्बे के साथ There are many religions in the world, but most of the religion they tell a kind of a good ethics, how you live, how to live a good life here. और सारे धर्म जो है अच्छे अच्छे वो नियम के बारे में, जिंदगी के बारे में सिखाते हैं कैसा वो अच्छी तरह रहना है। But they are unable to give a life, what a future of a reality that will happen after your death. लेकिन मौत के बाद जो हकीकत है उसके बारे में वो नहीं कहते हैं। Only Christian message, Christian gospel, you hear about life after death like that. लेकिन केवल मसीह सुसमाचार के जरिए से हम समझ सकते हैं कि मौत के बाद एक जीवन है, जिंदगी है। So now, as I told you, now this can be compared to our God. हमने पहले ही कह दिया कि ये परमेश्वर के साथ तुलना किया जा रहा है। A God who cares for you, who is a very what you call loves you, does everything for you. एक ऐसा परमेश्वर जो आपको प्रेम करता है, आपके बारे में परवाह करता है, आपके लिए वो परमेश्वर सब कुछ करता है। But the question is, there a God? लेकिन एक Many people could ask question, is there a God? कई लोगों का ये सवाल ये है कि खुदा है या नहीं। If there is a God, why do all these tragedies, why all this death, why all these things happen? यदि एक खुदा है तो ये सारे जिंदगी की ट्रेजेडी या दुखदायक बातें, घटनाएं क्यों होती है? On the initial stage, when you look at it, generally those who deny God are fools. और आमतौर से देखा जाए तो इंसान खुदा के बारे में पहले इनकार करता है। That is Psalms 14 verse 1, it is said, if a person denies God, he is a fool. 14 भजन उसका पहला वचन में हम देखते हैं वो मूर्ख है जो खुदा के अस्तित्व के बारे में इनकार करता है, जो कहता है खुदा है ही नहीं। But if we analyze the people who deny God, they are not ordinary people, they are the most intelligent and wise people. और वो लोग हैं जो खुदा का इनकार करते हैं, जो काफी वो समझदार हैं, वो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे नहीं कि वो निर्बुद्धि है। They are common man believe, but educated man does not believe. साधारण मनुष्य तो विश्वास करता है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो वैसा विश्वास नहीं But yet the Bible says that wise man is a fool. लेकिन बाइबल कहती है जो ज्ञानी मनुष्य है वही मूर्ख है। Why? क्यों? There are two reasons. दो कारण है। When you look at the whole world around you, हमारे चारों ओर के दुनिया को जब देखते हैं you can definitely think that must be a designer or one who planned everything. क्या हम सोचते नहीं कि इस दुनिया के पीछे उसको डिजाइन करने वाला, उसका योजना बनाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है? Look at the mountains and the valleys, the seas and forests and animals and birds and fishes. All these things you reveal something, a great mind behind it. वो पहाड़, वो तराई, वो पक्षी, वो सारे इस प्रकृति के चीजें, हाँ जी, इसके पीछे इसका कुछ योजना करने वाला, एक बनाने वाला, उसे आकार में, अस्तित्व में लाने वाला एक खुदा है या उसके बारे में नहीं सोचते? Some years back in Dehradun, I was speaking about how God gives wisdom to eagles and birds like that. कुछ समय पहले देहरादून में हम सिखा रहे थे कैसे परमेश्वर उकाब को उसके बच्चों के लिए ऐसे बुद्धि क्यों देता है। And after the meeting, one young brother came. मीटिंग के बाद एक जवान भाई वहां आया। Pastor, I am doing research. I am a PhD doctor writing about a thesis on the birds. पास्टर, मैं तो डॉक्टरेट कर रहा हूँ और पक्षियों के बारे में एक थीसिस में लिख रहा हूँ। And your word regarding that eagle touched my heart. और आपका उस उकाब के बारे में जो शिक्षा था वो मेरे दिल को छुआ है। And he told me, Pastor, I will give you one more enlightening information. और उस व्यक्ति ने मुझसे उस उकाब के बारे में और भी कुछ सूचना देने के लिए बोला। He said there is a bird, Siberian bird. It migrates into India during the what you call winter time. और उन्होंने ऐसे बताया कि एक साइबेरियन पक्षी है जो
सर्दी के समय में वो दूसरे देश से हमारे देश में आ जाती है। Sometimes it has to cross over the Mount Everest. कभी कभी वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उसे आना पड़ता है। And no bird can fly over Mount Everest and live because there cannot be oxygen there. और कोई भी पक्षी माउंट एवरेस्ट पहाड़ के चोटी के ऊपर से उड़कर यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, सांस ले नहीं सकते। So scientists began to wonder how these birds can fly without any oxygen. सो वैज्ञानिक लोगों ने इस बात का जांच किया कि कैसे पक्षी ऑक्सीजन के बगैर यहाँ उड़कर आ जाते हैं। Recently they found out that once it comes up to the top, it enters into the air current. और हाल ही में उन्होंने ऐसे जांच किया और उन्हें मालूम हुआ कि ये पक्षी जो है ऊपर के वातावरण में जहां पर एयर करंट होती है उसके अंदर वो प्रवेश करते हैं। Then it doesn't fly, it floats. और उसके बाद वो उड़ती नहीं है, वहां पर वो हवा में ऐसे केवल तैरता रहता है। So they say, how this bird got that wisdom? ये कैसे इस पक्षी को ये बुद्धि मिला? How God had made this particular availability for this bird to cross over Mount Everest. कैसे इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर से इस जगह को पार करने का बुद्धि उसे मिला? And second example, in Australia, you will find penguins. और ऑस्ट्रेलिया में पेंगुइन्स ऐसा पक्षी के बारे में देखते It's हैं। very difficult to find out the male and the female penguin. और पेंगुइन में नर नारी का फर्क बहुत मुश्किल से मालूम होता है। Usually the male penguin will throw some stones before the other penguin. और ये जो नर पेंगुइन है और पक्षियों के सामने कुछ पत्थर ऐसे वो डाल देता है। If that penguin by its leg throws it away and shows angry, that means that penguin is a male penguin. और वो जब पत्थर उसके सामने डाला जाता है तो दूसरा पक्षी यदि अपने पांव से उस पत्थर को ठुकरा के फेंक दे तो ये माना जाता है कि वो दूसरा पक्षी एक नर पक्षी है। But if the penguin bows its head and bow and worship, kind of bows its head and adores it, that's a female penguin. लेकिन ये दूसरा पक्षी वो पत्थर जब उसके सामने डाला जाता है तो वहां जब झुक जाता है या उसे ग्रहण करके मान लेता है तो वो मादा है, ऐसे मालूम किया Who जाएगा। gave the wisdom? Who gave the wisdom? कौन ये बुद्धि उसे दिया? God. परमेश्वर ने। Look at your own body. अब अपने शरीर को देखिए। In Psalms 139 verse 14 we read, 139 भजन उसके 14 वचन में हम देखते हैं। you will find that God has created a mysterious body हम in देखते your हैं परमेश्वर ने एक ऐसे अद्भुत शरीर को हमारे लिए सृजा है। Read it please. 139 verse 14. 139 का 14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Fearfully and most wonderfully I am made. मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। Look at your heart. आपके हृदय को देखिए, It's only 450 grams weight. वो केवल 450 ग्राम उसका वजन है। In that body, it has no beautiful and the most ugliest organ in the body, it seems. वो लगता है शरीर में ऐसा एक कुरूप सा ऐसा एक अंग है। But if you a person live about 70 years, लेकिन एक व्यक्ति 70 साल तक यदि जिंदा रहता है, you would have pumped about 3 lakh tons of blood from that heart. उस हृदय से 3 लाख टन खून पंप किया हुआ व्यक्ति होगा वो 70 साल का व्यक्ति। Even 1 or 2 minutes, that machine will not stop. Even 1 or 2 minutes, the heart will not stop. 1-2 मिनट के लिए भी वो मशीन कभी रुकता नहीं है। How can you make a machine that can work about nearly 70 or above years? कैसे ये मशीन 70 साल तक या उससे ऊपर तक ये काम करता रहता है? There's a God behind it. उसके पीछे खुदा है। Look at your own body, blood vessels are there, blood streams are there. आपके शरीर को देखिए, उसमें ब्लड वेसल है, ब्लड स्ट्रीम्स है। And it's so marvelously they found out that so many thousands of kilometers of blood vessels are in your body. ये हैरान करने वाली बात यह है कि शरीर में बहुत ज्यादा किलोमीटर काम करने वाला ऐसे ऐसे ये खून का रास्ता दिया गया है। Once I was telling these details in one convention. एक कन्वेंशन में मैं इसके बारे में कुछ बातें बता रहा था। There was a medical professor who was attending the convention. एक मेडिकल प्रोफेसर था, वहां कन्वेंशन में मौजूद था। He said, "What? I am a medical professor. I do not know all these details. मैं तो एक मेडिकल प्रोफेसर हूँ, मुझे ये सब बातें ठीक से मालूम नहीं है। Are they written in the Bible?" क्या ये बाइबल में लिखा है? Yes. हाँ जी। He began to read the Bible. वो बाइबल पढ़ने लगा He became a good believer in South.
और साउथ इंडिया में वो बहुत अच्छा एक विश्वासी बन गया। Because generally people think, oh, Bible is only for the old women. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बाइबल की किताब जो है वो बूढ़ी स्त्रियों के लिए है। Oh, I am an educated man, I am a man with reason, I cannot understand anything of the Bible. मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, बाइबल में से मुझे समझने के लिए ऐसे कोई बातें उसमें नहीं है। But remember, लेकिन याद रखें, hidden treasures are there. If you go on study, you will wonder how much things are hidden there. बाइबल में कुछ गुप्त ऐसे धन है जिसको गहराई से पढ़ने से उसे समझ सकते हैं। So a man who denies God, he is a fool. इसलिए जो इंसान वो परमेश्वर का जो इनकार करता है वो मूर्ख है। Walter denied, and he said within 100 years that there won't be any no Bible in the whole world. वॉल्टेयर ने ऐसे कहा था कि 100 साल के बाद इस दुनिया में कोई बाइबल रहेगा ही नहीं। And he died. His house is the Bible Society of France today. वॉल्टेयर तो मर गया, आज फ्रांस में उसका घर जो है बाइबल सोसाइटी का मकान बन गया है। Ingersoll was another atheist. When he was dying, he said, I will give all my fortune if somebody can prove there is no eternity. और एक नास्तिक था, वो कहता था कि मैं मेरा जिंदगी का सारा दौलत मैं उसे दे दूंगा जो इस बात को साबित कर दे कि नित्यता है ही नहीं। There is another atheist called Charles Bradlaugh. चार्ल्स ऐसा एक और नास्तिक था। He was a famous man who made the wreck of many people's faith. और उसने कई लोगों का विश्वास को तोड़ दिया, ऐसा एक व्यक्ति था वो। But when he died, जब वो मर गया, there was no prayer. No prayer. वो कोई प्रार्थना नहीं, No prayer and there is no service at all. और कोई सर्विस नहीं, And no singing. और कोई गीत नहीं। Like an animal is thrown into the pit, they thrown into the body. जैसे एक जानवर को हड्डे में फेंक देते हैं वैसे उसके लाश को उन्होंने फेंक दिया। So the people who think that they are wise, the end is very pathetic. और जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, उनका जिंदगी का अंत बड़ा भागा हालत में जाता है। But look at the gallery of the saints of God. लेकिन संतों का हालत को देखिए। Paul says, I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept the faith. पौलुस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मेरे विश्वास को मैंने संभाला है, मैंने मेरा दौड़ पूरा किया है। And there is a crown of righteousness waiting for अब me. मेरे लिए धर्म का मुकुट इंतजार कर रहा है। Peter says, the Lord told me, very soon I will be leaving this tabernacle. पत्रस कहता है कि प्रभु ने मुझसे बोला है कि बहुत जल्दी इस ये मिट्टी का डेरा को मैं छोड़ने जा रहा हूँ। There was a called Lady Bertha. एक ऐसा बहन थी, Bertha. her बेहता name. ऐसा नाम का, She was of a royal family. वो राजकीय परिवार की थी। She accepted Christ. उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। But the king told, you have to deny Christ, otherwise we will put you into death. राजा ने ऐसा आदेश दिया कि तुझे इस मसीह का इनकार करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे मौत का सामना करना She पड़ेगा। says, no. उसने बोला नहीं। She was pregnant. वो उसके पेट में बच्चा था And there was a helping maid also with her. और उसका सहायक एक ऐसे दासी भी थी। But she said, I will not deny my Christ. उन्होंने बोला मैं मेरा मसीहा का कभी इनकार नहीं करूंगी। On the day when she was put before the lions, और जिस दिन उसे शेर के सामने डाले डाला था, she cried out that this is my wedding day. और उसने ऐसे चिल्ला उठी कि ये मेरा आज ब्याह का दिन है। When Reverend Moody died, he said, this is my crowning day. रेवरेंड मूडी जब मर रहे थे उसने कहा ये मेरे ताज पहनाने का वो दिन है। They say, the early Christians, if any brother stands for the faith and dies, पुराने जमाने में से बोलते यदि कोई विश्वासी अपने विश्वास में खड़े होकर यदि मरने लगता है, that funeral service will not be a funeral of sorrow, it seems. उस दिन का जनाजा वो दुख का जनाजा नहीं होता था। That funeral service will be a time of celebration. वो फ्यूनरल जो है वो खुशी मनाने का एक दिन था। They will sing and praise God and rejoice. वो खुशी मनाते थे, गीत गाकर प्रभु को महिमा देते थे। Such a thing you cannot expect a man who doesn't believe in God. अचानक से एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है उस पर उम्मीद नहीं कर सकते। So that's why we believe, we know, the man who denies God is a fool. इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर का अस्तित्व का इनकार करता है वो मूर्ख है। Now the question is, what about the uniqueness of the God who we are believing? अब ये बात है कि अब विशेष बात ये है कि वो परमेश्वर की विशेषता क्या है। All are believing in God, सब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, but they believe in a different angle. लेकिन वो अलग ही तरीके से उस पर विश्वास करते हैं। Most of them believe that God is impersonal. और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर का कोई व्यक्तित्व नहीं है। God is in the pillar, God is in the animal, God is in the bird, God is everywhere like that. परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, वो खंबे में है, वो पक्षी में है, सारी जगह मौजूद है।
And some people say God is a God who lives in distant heaven. और कुछ लोग का ये धारणा है, सोच विचार है कि परमेश्वर दूर स्वर्ग में रहता है। He doesn't care about what your problems and what your pains are there. वो आपके परीक्षाओं के बारे में, दुखों के बारे में वो परवाह नहीं करता है। And there are those who say you must worship God. You must never say Father God, my Father, my beloved, like that. ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि खुदा का इबादत तो करना चाहिए, लेकिन यूं मेरा खुदा, मेरा बाप, ऐसे हम नहीं बोलना चाहिए। But what does the Bible says? बाइबल क्या कहती है? The Bible says our God is a personal God. बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, वो निजी अनुभव देने वाला, व्यक्तित्व में आने वाला परमेश्वर है। In Exodus 3rd chapter 14th verse we read. निर्गमन 3:14 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. I am that I am. मैं जो हूं मैं हूं। That is I. That is a personal God. मैं, वहां पर एक व्यक्तित्व देने वाला एक परमेश्वर है। In 1 Timothy 6 chapter 16th verse we read. पहला तिमोथी 3 अध्याय उसके 16 वचन में, There we find our God is an immortal God. वहां हम देखते कि हमारा परमेश्वर सदा के लिए रहने वाला एक परमेश्वर And है। he lives in an unapproachable light. वो ऐसा ज्योति में रहता है जो अगम्य ज्योति में है। He is a holy God. ये पवित्र परमेश्वर है, God of love. वो प्रेम का परमेश्वर है, God of mercy. वो दयालु है, God of truth. वो सच्चा खुदा है, God of righteousness. वो धर्मी परमेश्वर है God of humility. और नम्रता का परमेश्वर है। I mean the character aspect of our God is so great which other religion cannot talk about that. और उस परमेश्वर का जो स्वभाव वो इतना महान है कि और धर्म इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। And not only character, we have got all what they call powerful God we have. और उसका स्वभाव इतना है, ये केवल नहीं कि वो सर्व सामर्थी खुदा भी है। He is a God who can raise up even the dead. वो ऐसा खुदा है जो मुर्दों को भी जिला सकता है। And he called those people who were called those things that are not as though they were. और जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर कोई नहीं है, उसको ऐसा पुकारता जहां कुछ था। It's a personal God, but no one has seen it. और वो एक व्यक्तिगत खुदा है, लेकिन उसको कोई देखा नहीं है। In John's Gospel, 1st chapter 18th verse we read. यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसके 18 वचन में, There, no one has seen God, only the Son who is in the bosom. Read it, please. किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, केवल पुत्र जो उसके गोद में था। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. No man has seen God. किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, Only Jesus was able to reveal that God. केवल यीशु मसीह ही इस खुदा को प्रकट कर पाया। And this Jesus was boldly enough to say that if you don't believe that I am He, you will die in your sins. और यीशु मसीह बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि यदि तुम विश्वास नहीं कर सकते कि मैं वही हूं, तो तुम तुम्हारे गुनाहों में मर जाओगे। In John's Gospel 8 chapter 24th verse we read. यूहन्ना 8:24 में यीशु ने बोला, Jesus quoted a verse from Isaiah 43 verse 10. यशायाह 43 उसका 10 से यीशु मसीह ने एक वचन वहां बताया। Isaiah 43 verse 10, read it. यशायाह 43:10 पढ़िएगा। Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that he may know and believe me, and understand that I am he. Before me there is no God formed, neither shall there be after me. यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। वही हूँ, He, I am He. मैं वही हूं। John 8:24, the same verse he quotes. और यूहन्ना 8:24 में यही वचन वहां बताता है वो। In Hebrew 1st chapter verses 2 and 3, Paul said he is the express image of God. इब्रानी पहला अध्याय उसके दूसरा तीसरा वचन में हम देखते हैं कि वो पिता परमेश्वर का वही स्वरूप है। One of the disciples, Philip, asked, Lord, show us the Father. एक चेले ने यीशु मसीह से दरखास्त किया, हे हमें वो पिता दिखाओ। Jesus told, he who has seen me has seen the Father. यीशु ने जवाब दिया, जो मुझे देखा है वो पिता को देख लिया है। So brother, sister, to see this God
To know this God, you have to come through only Jesus. इसलिए भाई बहन, इस परमेश्वर को देखने के लिए आप केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उसे देख पाएंगे। Saint Augustine wrote in this way, संत अगस्तिन ने ऐसे लिखा, Lord, thou hast created ourselves for thy sake. अय प्रभु जी, तूने हमें तेरे वास्ते सृजा है, Until and unless we find rest in thee, we don't find any rest. और जब तक हम तुझ में विश्राम नहीं पाएंगे, हम विश्राम पा नहीं सकते हैं। And that is what the philosophers say, cosmo loneliness. वही तत्वज्ञानी कॉस्मो लोनलीनेस कहते हैं कि वो एक अकेलापन है। When you are with your mother, you feel you are with someone. जब आप अपने माँ के साथ हो तो आपको ये यकीन होता है कि हाँ, मैं किसी के साथ हूँ। Your father, your brother, your sister, your husband, your wife comforts you. आपका पिता या माँ या पत्नी या बच्चे, कोई ना कोई आपको तसल्ली देता है। But there are times you find lonely, you don't find anyone come nearer to you. लेकिन जब आप अकेलापन में रहते हैं तो वहां पर किसी को आपके साथ नहीं पाते हैं आप। And that's a place only God can fill it. और वो एक ऐसा शून्य स्थान है, खाली स्थान है, जिसको केवल खुदा भर सकता है। Sadhu Sundar Singh, when he became a Christian, his uncle's daughter came and told, you made a promise that you would marry me. और जब साधु सुंदर सिंह एक मसीही बन गया तो उसके मामा जी आकर कहने लगे, तूने हमसे वादा किया था कि तुम शादी करोगे। Yes, I made a promise to you. हाँ जी, मैंने आपसे वादा किया था। I have one heart. मुझे केवल एक ही हृदय है, And that heart I give to Jesus. वो हृदय मैंने यीशु को दे दिया है। So I don't have anything to give to you. अब मुझे आपको देने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। Some of our young brothers and sisters question, why you forbid love marriages? और कुछ हमारे जवान भाई बहन ऐसे पूछते हैं कि क्यों आप लव मैरिज